سینئر جرنلسٹ اسد علی طور نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت عرصے بعد ہمیں آپ جوائن کر رہے ہیں, امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں. سب سے پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. پاکستان میں فائر وال جو ہے وہ بچھا دی گئی ہے. ہمارا جو دفاع ہے ہماری وہ اور مضبوط ہو جائے گا. اب تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے تو ابھی کل 14 اگست گزرا ہے, تو آپ کو دفاع کی مبارکباد دے دیں کہ پاکستان کا اب دفاع مضبوط ہاتھوں میں چلا گیا. اب تو مضبوط دیوار کے حصار میں ہے. بالکل, اب تو آگ کی دیوار ہم نے بچھا دی ہے. بہت شکریہ نیلم. اور پہلے میں معذرت کروں گا, میں تھوڑا وہ گاڑی میں ہوں تو وہ لائٹ کا تھوڑا کمی ہوگی اور شاید تھوڑی آواز بھی بریک ہو, تو اس میں معذرت. لیکن آواز بریک ہونے میں اسی فائر وال کا ہاتھ ہوگا. اور یہ جو فائر وال لگائی گئی ہے ہمارے حکمرانوں کی اور ہماری ریاست کی ہمیشہ سے جو آوازوں کو کچلنے کی, اختلافی آوازوں کو کچلنے کی خواہش ہے, وہ 75 سال سے ختم نہیں ہو رہی. یقین مانیے اگر ان کے بس میں ہو تو یہ پورے ملک میں قبرستان والا بھوک کا عالم لائیں. اگر ان کے بس میں ہو کہ کسی کی آواز نہ نکلے, کچھ بالکل خاموشی ہو, اور اگر کوئی آواز آئے تو وہ نیرو کی ہو جو چین کی بانسری بجاتا رہے ان کے لیے, ان کے سامنے. تو یہ وہ سننا چاہتے ہیں, اس کے لیے اب یہ فائر وال لے آئے ہیں. اس میں بھی اربوں روپیہ لگا دیے ہیں. اور یقین کریں اس فائر وال کی آؤٹ پٹ صرف یہ ہے کہ یہ انٹرنیٹ کو سلو کر سکتے ہیں. نہ یہ اس سے کسی یوٹیوب چینل کو بند کر سکتے ہیں, نہ کسی یوٹیوب یو آر ایل کو بند کر سکتے ہیں, نہ کسی فیس بک کے آئی ڈی کو بند کر سکتے ہیں, نہ یہ کسی اسپیسیفک انسٹاگرام کے اکاؤنٹ کو بند کر سکتے ہیں. اگر ان کو بند کرنا ہوگا تو پورا کا پورا پلیٹ فارم بند کرنا ہوگا, جیسے انہوں نے ٹویٹر کو بند کیا ہوا ہے, وہ بھی وی پی این پہ چل رہا ہے. پورا ملک چلا رہا ہے, پرائم منسٹر سے لے کے جس نے بند کیا ہوا ہے نیچے جسے کہتے ہیں نا ان کا آفس بوائے تک سب وی پی این پہ یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب وہ فائر وال لے آئے ہیں, پتہ نہیں اس میں کس نے اربوں بنا دیے ہوں گے, ٹھیک ہے, اس کے نام پر. اور اس کے طرح سے جس طرح سے انٹرنیٹ کی ٹریفک سلو ہوئی ہوئی ہے, یہ اتنا لوگوں کو فرسٹریٹ کر رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ اختلاف رائے کو کچلتے, آپ اپنے لیے مزید نفرت میں اضافہ کر رہے ہیں یہ فائر وال لگا کے. لیکن کیا کریں, جب آپ حکومت میں آ جاتے ہیں, جب آپ صاحب اقتدار ہوتے ہیں, یا آپ کسی با اختیار ادارے میں, کسی با اختیار پوزیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, تو پھر شاید آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی حکمرانی رہے گی ساری عمر, اور اب آپ چاہے وہ انڈا دیں چاہے بچہ دیں, لوگ اس کو اپریشیٹ ہی کریں گے. اچھا اسد, یہ بات تو آپ نے ڈیٹیل بالکل تفصیل سے آپ نے کر دی نا کہ یہ جو فائر وال ہے اس طرح سے کچھ پلیٹ فارمز کو تو بند نہیں کر سکتی. ہم نے دیکھا جو بیانات آ رہے ہیں کہ جی ملک کی سیکیورٹی کو بہت سنگین خطرات درپیش تھے, تو ہمیں ضروری تھا کہ یہ اس فائر وال سسٹم کو لگایا جائے. تو کیا جو ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصے میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے, تو اس دہشت گردی سے کے جو نیٹ ورکس ہیں ان کی کمیونیکیشن کو بھی روکنے میں مدد کرے گی یہ وال؟ ان کے جو سہولت کار ہے, رابطہ کار ہے, دہشت گردی میں ملوث جو گروہ ہیں ان کو ٹریس کرنے میں, ٹریک کرنے میں بھی یہ کوئی فائر وال مدد کرے گی؟ اچھا, ایک اور پوائنٹ اس میں ایڈ کر لیجیے گا احمد, آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. اور اگر یہ فائر وال کی مدد سے ہی ہم اپنا دفاع مضبوط کریں, سیکیورٹی مضبوط کریں, تو پھر کیا ڈیفنس بجٹ کم ہو سکتا ہے؟ ہم انٹرنیٹ کا بجٹ زیادہ کر دیں, انفارمیشن جو منسٹری ہے اس کو زیادہ فنڈز دے دیے جائیں, تو پھر پاکستان کا دفاع اور مضبوط ہو جائے گا. یہ بھی آئیڈیا, اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ اچھا, ایسا ہے کہ دیکھیں, میں ایک بات کہوں کہ ہم 75 سال سے نا ہمارے ملک کو خطرہ نہیں جا رہا, اور ہم ہمیشہ نازک موڑ پر رہے ہیں. وہ موڑ بھی نہیں ہم مڑ پا رہے, اور اب وہ مجھے ڈر ہے کہ یہ نیلم کی اس چھوٹے آئیڈیا کو کہیں پک ہی نہ کر لیں کہ ہمیں اس کا نا فائر وال کا بجٹ بڑھا دینا چاہیے. مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ میں ڈان میں جاب کرتا تھا, تو اس کے وہ آفس کی بیک سائڈ پہ ایک مسجد ہوتی تھی چھوٹی سی ورک شاپوں کے ساتھ. تو میں وہاں پہ ایک بار جمعے کی نماز پڑھنے گیا, تو وہاں پہ مولوی صاحب دعا کروا رہے تھے. تو اس میں انہوں نے ایک دعا کرواتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یا اللہ پاکستان کے ایٹم بم کی حفاظت کرنا. میں تھوڑی دیر کے لیے دعا کرتے ہوئے رک گیا. میں نے کہا یہ تو ہم نے اپنی حفاظت کے لیے بنایا تھا, ہمیں اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی. تو وہ حساب ہے یہاں پہ. اب فائر وال ہے, اب فائر وال سے ملک کا دفاع مضبوط ہوگا, پتہ نہیں کس کس چیز سے ملک کا دفاع مضبوط ہے انہوں نے کرنا ہے ابھی. ٹھیک ہے, عوام کا دفاع نہیں کرنا. عوام اس ملک کے بھوکے مر جائیں, ان کو بنیادی سہولت نہ ملے, ان کو اچھے ہاسپٹل نہ ملے, اچھی ایجوکیشن نہ ملے, ان کو کریٹیکل تھنکنگ کی اجازت نہ ملے, ان کو فریڈم آف سپیچ نہ ملے, ان کو ووٹ کا حق نہ ملے, ان کے بارے میں ہو کہ یہ تو جاہل ہے, بریانی کی پلیٹ کھا کر پتہ نہیں کس کو الیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ہاں ملک کے آپ نے یہ ضرور دفاع کرنا ہے کہ فائر وال لگا لیں, فلاں چیز لے لیں, فلاں چیز لے لیں.
समझ नहीं आई कि इस मुल्क का दिफा कब बेहतर होगा, कब नाजुक मोड़ जिसे कहते हैं हम उस पर गाड़ी मोड़ के आगे निकल आएंगे और फिर तरक्की की राह पर आएंगे, वो नहीं मिल रहा, वो रास्ता नहीं हमें मिल रहा। हम उसी नाजुक मोड़ पे यकीन करें वो राउंड अबाउट बन गया, हम उसमें घूमते जा रहे हैं 75 साल से, वो पता नहीं कब तक चलेगा। दुरुस्त। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये तो मुझे लगता है आप गाड़ी में भी इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि किसी ना किसी तरह आप ये सुराग लगा लें कि किस तरह से ये मोड़ जो है इससे हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे ये बताइए, पाकिस्तान में एक और भी तारीख, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी होता है वो तारीखी ही होता है और एक नई तारीखी रकम होती है, एक नई सुबह का आगाज होता है, एक नया उजाला होता है, नई रोशनी होती है। ये जो नई किरणें फूट रही हैं, ये जो फैज़ हमीद साहब पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी, मशहूर ज़माना इंटेलिजेंस एजेंसी, उसके सरबराह उनका फील्ड कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और उनके साथियों को भी पकड़ा जा रहा है, और अब कुछ लोग कह रहे हैं 8 नहीं, अब तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो गए। ये डेवलपमेंट को आप किस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरह से रीड कर रहे हैं? अच्छा देखिए, ये कोई बहुत से लोग इसको गैर मामूली कह रहे हैं, लेकिन ये काफी अरसे से एक्सपेक्टेड था, ये कुछ ऐसा नहीं है। और ये इसलिए भी एक्सपेक्टेड था, ये बज़ाहिर तो कहा जा रहा है कि वो जो सियासत में उनका किरदार था या सब कुछ था। देखिए, सियासत में उनका किरदार 2017 से, ठीक है, तो जो उनका असल किरदार है उस पर नहीं कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी तो आर्टिकल 6 लगेगा, और ये प्रेसिडेंट कभी नहीं सेट होने दिया जाएगा कि एक मिलिट्री जनरल के ऊपर आर्टिकल 6 लगे, और वो भी सियासत में किरदार अदा करने पर, क्योंकि इदारे ने ना 75 साल से सियासत तर्क की है, ना उनका फ्यूचर में कोई ऐसा इरादा है तर्क कर दे। तो अब वो जिसे कहते हैं हाउसिंग सोसाइटी का निकाला गया, तो वो हाउसिंग सोसाइटी पर भी 2017-18 का वाक़या है। आपको इतने साल बाद याद आया कि उन्होंने ये सब कुछ किया था। आपको ये भी समझना होगा कि ये जो अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं वो भी इसमें मैटर करते हैं कहीं ना कहीं। जो जनरल फैज थे वो 2017 से, जब वो डीजीसी थे आईएसआई के, उनके जिसे कहते हैं खुशगवार ताल्लुकात नहीं थे उस वक्त के डीजीएमआई मेजर जनरल नासिम मुनीर से। तो ये तब के ये मामला चल रहे हैं। फिर ये है कि जब आर्मी चीफ की रेस आई तो यकीनन जनरल फैज हमीद भी आर्मी चीफ के उम्मीदवार थे। उन्होंने ना सिर्फ आर्मी चीफ बनने की भी कोशिश की बल्कि जनरल नासिम मुनीर का रास्ता भी रोकने की कोशिश की। वो नाकाम हो गए। नाकाम होने के बाद भी लेकिन उन्होंने जिसे कहते हैं वो आप कह लें कि बदले की आग शायद नहीं बुझी होगी, कि वो समझते होंगे कि इनको आर्मी चीफ नहीं रहने देना चाहिए, तो उसके लिए वो सब कुछ जो भी लॉबिंग करते रहे होंगे उन्होंने की होगी। कहीं ना कहीं उन्होंने सियासी जमातों को भी इस्तेमाल किया। तो ये किरदार वो अदा करते रहे, और यही इस बात का सबूत है कि अगर वो ये किरदार अदा ना कर रहे तो शायद आज टॉप सिटी पे आज भी वो उनको कुछ ना होता। अच्छा असद, हमने ये जब इस चीज़ का आगाज़ हुआ, जब उनकी गिरफ्तारी की खबर आई ISPR के ज़रिए से, उसके फ़ौरन बाद जो सियासी जमातें हैं उनका मिला जुला रद्द अमल था। ख़ासतौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को प्रेस ने कांटेक्ट किया और उनकी जानिब से आगाज़ में तो यही कहा गया कि भाई हमारा क्या इससे लेना देना, ठीक है इदारे का मसला है, इदारे का बंदा इदारा उसको देखे। लेकिन आज जो इमरान खान साहब ने बात की है और कहा है कि वो तो वाज़ेह तौर पे कहा है कि एक असासा थे मुल्क का जिनको ज़ाया कर दिया गया। अब तो आप इसको कैसे देखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो उससे पहले सोशल मीडिया पर भी और उनके जो रहनुमा भी जिस तरह से इस चीज़ को बयान कर रहे थे, अपने आप को लाताल्लुक़ इससे बता रहे थे, खान साहब ने तो एक उनके लिए मुश्किल खड़ी कर दी। तो किस तरह से फेस करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सारे मामले को? कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी क़यादत ऐसे मौक़िफ़ देती है कि फिर पूरी पार्टी दिफा करती रहती है। ये पीटीआई में कोई अनहोनी नहीं है, ठीक है। और जहाँ तक खान साहब का ये बयान है, आपको इस तनाजुर में भी देखना होगा कि खान साहब को भी एहसास होगा कि ये ना हो कल को फैज़ हमीद को वादा माफ गवाह बना रहे, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं उनको बिल्कुल अबेंडन भी नहीं करना, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं और ये सियासत में यही होता है, पाकिस्तान की सियासत यही है। और देखते हैं कि ये कुछ अर्सा तो यकीनन पीटीआई को डराने की कोशिश की जाएगी। जिस तरह अप्रैल 2022 से पहले, नो कॉन्फिडेंस आने से पहले पूरी की पूरी पीडीएम को जनरल फैज हमीद को एक बहू बना के दिखा के डराया जा रहा था कि वो आ जाओ वरना फैज आ जाएगा आर्मी चीफ, ठीक है। तो अब
मुझे लगता है कि पीटीआई को वो डराया जाएगा हर वक्त, वो बहू देखो फैज हमीद अभी कुछ बोल देगा, अभी वो उगल देगा, अभी कोई इतराफ कर देगा, अभी तुम्हारा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो जाएगा। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वही उनका इस्तेमाल वही हो रहा है। सही। ये आपस की आपने बताया रिफ्ट है, ये लोग जानते भी हैं, आपने मजीद क्लियरली इसको बयान भी कर दिया है, लेकिन आपस की रिफ्ट में ये दोनों इतना आगे कैसे निकल गए कि इदारे का इमेज ही अब ऑब्वियसली लोग जब इतनी टॉप पोजीशन, इतनी दुनिया में जानी वाली जो हसास एजेंसी पाकिस्तान की, उसका सरबराह, उसके साथ अब हर चीज़ जुड़ रही है। ठीक है, उनको टॉप सिटी के केस में अगर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, 9 मई का भी उनसे मामला जुड़ रहा है जिसमें ये लोग कहते हैं कि शोहदा की जो यादगारें हैं उनकी बेहुरमती की गई है, कॉप्स कमांडर GHQ इनकी बेहुरमती की गई है, इस मामले से भी उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये इदारे का इमेज भी तो मुतासिर हो रहा है। इसके ऊपर कैसे समझौता कर लिया मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने? देखिए, मेरे ख्याल में इदारे के इमेज का फिलहाल सवाल नहीं है। फिलहाल इदारे के अंदर जो एक रिजेंटमेंट या कुछ लोगों की सरगर्मियां थी, वो शायद ज्यादा बाइस तशवीश थी और उनको सदेबाब करने को तरजीह दी गई है। और हो सकता है फ्यूचर में फिर सिर्फ टॉप सिटी तक ही मामला रहे और दूसरी चीज़ों को सिर्फ प्रेस रिलीजों तक ही रखा जाए और वो प्रेस रिलीजों में भी आहिस्ता आहिस्ता वो जिसे कहते हैं आप ख़त्म होती जाए चीज़ें। अभी तो वक्ती तौर पर अभी तो शुरू हुआ ना, अभी तो एक हाइप क्रिएट की जाएगी कि कल फलां को पकड़ लिया, परसों फलां को पकड़ लिया, उसने ये इंकशाफ कर दिया, उसने उसका नाम ले दिया। वो ज़राए से खबरें ज़ीनत बनती रहेंगी, हमारी अखबारात की, हमारे टॉक शोज़ की, हमारे कहीं ना कहीं यूट्यूब चैनल की खबरों की। लेकिन वो हाइप रहेगी और तब तक रहेगी जब तक वो हाइप अपने जो तयशुदा अहदाफ है वो अचीव नहीं कर लेती। और जब वो कर लेगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें फिर वो नीचे आने लग जाएंगी। अच्छा, एक और अहम सवाल है आपसे। फिर हो सकता है किसी शाम ये भी खबर आए कुछ माह बाद कि वो उनको सजा हुई है, फिर उसके कुछ माह बाद खबर आए कि सजा माफ कर दी गई है, वो घर चले गए, वो घर बैठेंगे, बस हो जाएगा, कोई इतना बड़ा बात। ये एक पाकिस्तानी स्पिरिट आई है असद के अंदर से कि हो जाएगा, कोई मसला नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो जनरल बाजवा के बारे में मैं सवाल पूछना चाह रही हूँ, थोड़ा पर्सनल सवाल है उनसे रिलेटेड। मुझे पता है कि आप शायद जानते हो क्योंकि आपने बड़ी गहरी नज़र रखी होती है। शादियाँ तो वो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन वेटरन्स का एक गेट टुगेदर हुआ है, उसमें सभी मौजूद थे और सब हंसते मुस्कुराते, फोटो सेशन, एक पेज पे सब लोग नजर आए, मौजूदा और हाजिर और गैर हाजिर। तो जनरल बाजवा उसमें गैर हाजिर थे, वो क्या उस वक्त किसी शादी फंक्शन में मौजूद थे? नहीं, जनरल बाजवा के बारे में जो मैंने चेक किया उस पिक्चर्स को देखकर और उन पिक्चर्स के ऊपर जो स्पेकुलेट बहुत ज्यादा हो रहा था, तो मुझे पता चला कि जो मेरे ज़राए ने बताया, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा इस वक्त दुबई में मौजूद हैं अपने साहबजादे के यहाँ, वो मुल्क में नहीं थे। लेकिन एक चीज बहुत सिग्निफिकेंट है कि जिस अंदाज में पिछले कुछ दिनों से ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा को मलाइन कर रहे हैं और जिस अंदाज में आज इन इमेजेस को लेके कुछ खास सहाफियों ने जिनका इदारों से बहुत करीबी ताल्लुक है, उन्होंने ये ट्वीट की और कहा जनरल बाजवा नहीं, ये पैगाम है, खामोश, ये है, ये वो है। उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शायद ये फैसला हुआ है कि जनरल बाजवा को गिरफ्तार तो नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं की जाएगी, बिकॉज ये तो प्रेसिडेंट वो नहीं सेट होने देंगे कि एक एक्स आर्मी चीफ को किया जाए। लेकिन हाँ, उनको शायद मलाइन जरूर किया जाएगा, उनकी तस्दीक जरूर की जाएगी, बयानात की हद तक उन पर कीचड़ जरूर उछाला जाएगा कि ताकि इदारे के अंदर से ये भी पैगाम जाए कि एक लेफ्टिनेंट जनरल को अगर हम जो फॉर्मर DGI से रहे हैं अगर हम हिरासत में ले सकते हैं तो हम आर्मी चीफ को भी बड़ी कहते हैं उस नजर से देखते हैं। लेकिन फिर भी अमली कार्रवाई कोई नहीं होगी। मैं कम से कम इस बात पे मुझे अभी तक मैं कायम हूं कि जनरल बाजवा के खिलाफ कोई अमली कार्रवाई नहीं।
यकीनन, और हमने तो माजी में भी देखा कि उन अफराद को भी जिनको सज़ाएं भी सुना दी गई थी फिर उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया गया, वो इस रैंक के जो लोग थे। अच्छा असद, एक पाकिस्तान की सियासत में और बहुत मारूफ चीज़ है, और हर हुकूमत, चाहे वो हुकूमत हो, निगरान हुकूमत हो, उसको उसका सामना करना पड़ता है एक्सटेंशन का किसी ना किसी तरह से। उस एक मरहला ऐसा आता है कि उनको ये कड़वा घूंट खुशी से या ज़बरदस्ती बहरहाल पीना पड़ता है। तो ये अब कब ये मरहला आएगा, और जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उन्हीं के दौरे हुकूमत में आएगा, और किस तरह से चीज़ें क्या शुरू होगी? चूँकि हमने माजी में तो देखा कि बहुत पहले से उसका शोरगुल शुरू हो जाया करता है, उसी हवाले में पूरी जो सियासत है, पूरे मुल्की मामलात हैं, वो घूम रहे होते हैं। तो अब ये जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की, इनके लिए ये मरहला कब आएगा? देखिए, ये मरहला आ जाएगा नवंबर 2025 में, अगले साल, और इसीलिए आपको अभी से बहुत सी चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। ये गिरफ्तारियां, ये बयानात बहुत कुछ बताते हैं, ये मुस्तकबिल का बहुत मंजरनामा आपके सामने वाज़ेह करते हैं। और अगर आप फिच की एक रिपोर्ट जो आई थी कुछ माह पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 माह पहले, तो उन्होंने भी इस हुकूमत को मजीद 18 माह की मुद्दत दी थी। तो वो 18 माह अगर आप देखें तो वो कहीं दिसंबर 2025 में ही कंप्लीट होते हैं। अच्छा, ये मतलब आप तो कह रहे हैं शायद कि की रेटिंग में, रिपोर्ट में यही कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट को बनाने वालों में के जहन में ये सूरत हाल थी कहीं ना कहीं। अच्छा, इसका ये मतलब है कि एक्सटेंशन हुकूमत को मिलनी है, हुकूमत अपनी फिक्र करे कि उनको मिलेगी एक्सटेंशन या नहीं अगले 6 महीने में या 10 महीने में। ये भी बड़ी बात है। अगर वो जी 2025 के दिसंबर की बात करें तो मुझे लगता है कि मतलब शायद हो सकता है वो ये भी कह रहे हो कि दिसंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी। शायद वो कहना चाह रहे हो कि एक्सटेंशन देते या एक्सटेंशन ना देते शहबाज शरीफ सब सियासी शहीद हो जाए। सही से तो बिल्कुल, ये गिरफ्तारियां भी ले लो, ये एक्सटेंशंस भी ले लो, हमें तो बस अपना प्यारा सा पाकिस्तान वापस कर दो जिसमें इंटरनेट आता और बिजली के बिल कम आते हो। हम तो बस यही चाहते हैं। बहुत शुक्रिया असद, आपने ज्वाइन किया। अब आप आराम से घर चले जाएं, अंधेरा बहुत हो गया और मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है।